निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पेमा त्सेरिंग 3 दिवसीय शिमला दौरे पर पहुंचे हैं। शिमला पहुंचने पर उनका तिब्बती समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया और तिब्बतियन स्कूल छोटा शिमला में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पेमा त्सेरिंग ने चीन पर जमकर हमला बोला और कहा कि चीन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और यही वजह है कि सुरक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। इस दौरान पेमा त्सेरिंग ने कहा कि तिब्बत हमेशा भारत के साथ खड़ा है और बौद्ध धर्म भी भारत से दुनिया में फैला है, जिस पर आज चाइना अपना हक जमा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीतियां भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए खतरनाक हैं। अब वह यूरोपीय देशों को भी समझ में आ रहा है। चीन को अलग थलग करने के लिए सभी देश इकट्ठा हों। चीन दलाई लामा को नीचा दिखाने के लिए साइबर का सहारा ले रहा है। मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि चीन का टारगेट दलाई लामा नहीं, भारत है। अपने बयान को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि चीन अपना अधिकतर पैसा अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर लगा रहा है। चीन कभी भी किसी भी देश के साथ दगा कर सकता है। भारत के साथ लगती सीमाओं में भी चीन जानबूझकर हरकत करता है, लेकिन भारत के ताकतवर रवैये से चीन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उन्होंने कहा कि वे कई देशों में जाकर चीन की विश्व विरोधी नीतियों का विरोध करते रहे और तिब्बत की आजादी की मांग लगातार उठाते रहेंगे। During the election was that I will visit every Tibetan settlement at least twice in 5 years. So the last time I visited Simla was because we had to take over the residential schools from the Indian government, because it used to be run by the Central Tibetan Schools Administration. So that was an emergency case, so I had to come here for a very short period and then visit other schools. But this time, of course, I have to pay our respect to the state government, to the governor, to the honorable governor, and also honorable chief minister, and the relevant authorities that has administration over the Tibetan communities in Himachal Pradesh. So, this is not only the last leg of my visit to all the Tibetan communities. I have to cover Shimla, Manali, Kulu, Tashijong, and this Sundarnagar Mandi area. So this is the last leg. Once I cover this, then I would have covered every single Tibetan settlement in India. Because India is home of the Buddha. India was born here. Buddhism spread from India. This is the legacy of India, not China. Now that just because China has maybe 250 to 300 million Buddhists does not necessarily mean to say that China can own up the legacy of the Buddha. We are China, Tibet, Japan, Korea, all these countries in Southeast Asia who follow the Pali tradition of Buddhism, Laos, Cambodia, Thailand, Vietnam, Burma, Sri Lanka, all these countries. We are all extension of this ancient Indian wisdom. So we are also very proud as Tibetans that we derived Buddhism from India, not from China. Our language also came from India, not from China. So we must have transliterated every available Sanskrit text from Sanskrit to Tibetan in 8th century. That's more than 1,300 years ago. So we are very proud to be repository of one part of ancient Indian wisdom, which His Holiness represents all around the world, speaking about love, compassion, karuna, ahimsa. So all these, we are one extension of Indian culture. So that way, I think Indian government has the legacy, has the right to use this soft power all across the world. सीमा पे भी हो रहा है। आपको पता है, हमने लद्दाख में भी गया सीमा के साथ, क्योंकि हम कभी तिब्बत जा नहीं पाया, हमारे जन्म भारत में हुआ। तो मैं अपने इमोशनल नीड को फुलफिल करने के लिए कभी कभी बॉर्डर पे जाता हूँ। लद्दाख में भी गया, अरुणाचल में भी गया, सिक्किम में भी गया। और लद्दाख में जहाँ अनप्रोवोक जो आक्रमण हो रहा है चीन की तरफ से, वहाँ देखो तो कोई रहता नहीं, कुछ ये ग्रास भी नहीं है उधर, तो उसके ऊपर क्यों आक्रमण कर रहा है? तो हम जब अभी आप जैसे बता रहे कि हम विदेश जाके आए, हम फॉरेन मिनिस्ट्री से मिलते हैं, पॉलिटिशियन से मिलते हैं, तो उन लोगों को हम ये बताते हैं कि चीन, आप लोगों को शायद चीन बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग दिखता होगा मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मगर हम जितने भी इसको नीति के तरफ से एनालाइज किया जाए तो ये लग रहा है कि चीन आजकल बहुत इनसिक्योर है।
दूसरी तरफ से आप देखें तो आजकल एनालिसिस भी आ रहा है कि चीन बहुत इनसिक्योर है। इनका जितने भी खर्चा हो रहा है पूरा सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से तो एक तो यह है कि शी जिनपिंग के समय में या इससे पहले भी था, मगर आजकल रीइंफोर्स किया गया है कि ये पोलिट ब्यूरो में 7 मेंबर्स है, खुद को मिला के 3 मेंबर से ज्यादा इनके आगे के बिना मिल नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल कू को बंद करना चाहते हैं, इंटरनल डिसेंट को बंद करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि शी जिनपिंग के पिछले 4 साल में, खास करके 4 साल में इन्होंने एक मिलिट्री जनरल को एक जगह 1 साल से ज्यादा रखा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मिलिट्री कू भी बंद किया गया और उसका कोशिश भी नाकामी करने के लिए। We have to reach out to the Chinese government. There is no other way if we have to resolve it peacefully. And we believe that if the Sino-Tibet conflict can be resolved, then this border issue can also be resolved. Then there can be much more people-to-people relationship across the border. Now in this more than 3,600 kilometers of border between India and Tibet, this is one of the most non-porous border in the world. News Desk, N1 Live.